Hello students, today in this video we will cover three different topics. These are variation of conductivity and molar conductivity with concentration. Next is Coller's law of independent migration of ions, and number 3 and last one is calculation of degree of dissociation and dissociation constant for an electrolyte. Okay, so now let's begin the topic. Let us now consider this an electrolytic cell. So let us take L is the distance of separation between the two electrodes. Okay, and let us take A is the area of cross section of the electrodes. Okay, so resistance, resistance we know it is directly proportional to the length between the two electrodes, and resistance is also inversely proportional to the area of the cross section. Okay, so from the above two relation I can get R is proportional to L by A. Okay, so using proportionality constant I can get R is equal to rho L by A. Okay, what is rho? Rho is the resistivity. Okay, so now rho is equal to RA by L. So if I do inverse of it, 1 by rho equal to 1 by R into L by A I can write. So 1 by rho means what? Kappa. This is denoted by kappa. Kappa means what? Conductivity. So this is equal to 1 by R, and L by A means nothing but it is G star. This is the cell constant. G star is what? G star is nothing but L by A, which is known to be the cell constant of an electrolytic cell. Okay, so this is one expression, and from the same expression what I can write? I can write K is equal to C into G star. Now what is C? C is nothing but this is the conductance. Okay, this is the conductance. So from the expression I can write that K is equal to C when G star is equal to 1. Okay, now what is this kappa? Kappa means conductivity. Okay, this is the conductivity. And what is C? C means conductance. So what is actually G star? What is G star? G star means cell constant. So see, G star is nothing but L by A. Okay, so see, what is L? L is the length between the two electrode, and what is A? A is the area of cross section. So now the main point is that this G star of an electrolytic cell is always constant, is always a constant value. Okay, so now if I consider the length between two electrode is 1 centimeter. Okay, let us consider the length between two electrode is 1 centimeter, and the area of cross section of an electrode is 1 centimeter square. So this volume can be considered as 1 centimeter cube, is not it? So how can I define this kappa? So kappa is what? Kappa is conductivity. So what can I write? I can write that conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of a solution of an electrolyte. Means what? Conductivity, that means kappa is equal to C. Conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of a solution. That means अगर G star का value 1 रहेगा, ठीक है, अगर G star का value 1 रहेगा, then the value of conductivity will be equal to the conductance. That means the value of kappa will be equal to the value of C. Okay, so this is how we define the conductivity of an electrolytic solution. So now the main point is that how the value of kappa depends on concentration or it depends on dilution. Okay, so now see, for example, मैंने क्या किया? मैंने इतना तक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया और इसमें मान लो 1 मोल NaCl डाल दिया मैंने क्या डाल दिया? 1 मोल NaCl डाल दिया मैंने. ओके,
सो इसका कंसंट्रेशन जो भी है, अगर इसमें हम लोग और भी थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, मान लो मैं सेकंड केस में इतना वाटर लेवल इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इतना लेवल तक मैं इंक्रीज कर दिया वाटर, तो क्या होगा देखो, ये जो NaCl का जो कंसंट्रेशन है, ये पर यूनिट एरिया क्या होगा, पर यूनिट एरिया डिक्रीज होगा। अगर NaCl का कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, कंडक्टिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। दैट मीन्स कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ द डाइल्यूशन, ओके। सो कंडक्टिविटी क्या होगा, डाइल्यूशन पे डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या होगा उसके पीछे, उसके पीछे ये रीजन होगा कि नंबर ऑफ आयंस per unit volume will decrease, okay, number of ion per unit volume will decrease, therefore kappa decreases on dilution, okay. So this is the first point. So next we will discuss about the variation of molar conductivity with concentration. सो सिमिलरली आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लो, सेम टू सेम पहले जैसा हम लोग यूज़ किए थे, और यहाँ हम लोगों ने क्या किया, मान लो यहाँ मान लो 1 मोलर NaCl मैंने डाल दिया, ठीक है, 1 मोलर NaCl डाल दिया, और लेवल कितना तक है, लेवल मान लो इतना तक लेवल है इसका, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, फिर भी मैंने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद इसका लेवल जो है इतना तक मैंने बढ़ा दिया है। तो क्या होगा देखो, लैम्डा m का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा। लैम्डा m का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा m का फॉर्मूला है कप्पा इंटू v, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। नाउ as we have studied earlier that with the increase in dilution the value of kappa also decreases, ठीक है, वैल्यू ऑफ कप्पा जो है ये डिक्रीज होता है डाइल्यूशन पे। और यहाँ क्या होगा देखो, ये जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हम लोग अगर डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। सो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लैम्डा m भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम द फॉर्मूला देखो, कप्पा डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन पे, वॉल्यूम बढ़ रहा है डाइल्यूशन पे। सो इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम कंपेंसेट्स द डिक्रीज इन कप्पा और आई कैन से कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। मतलब यहाँ जो मेजर इफेक्ट होगा ये किसके लिए होगा, ये वॉल्यूम के लिए होगा, ठीक है। ये टेक्निकली देखो, ये फॉर्मूला से हमें ये पता चल रहा है, मीन्स लैम्डा m का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जितना करोगे लैम्डा m का वैल्यू इंक्रीज होगा, क्यों, डाइल्यूशन जितना करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा m, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ कप्पा जो है ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए ये लैम्डा m के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, तो देखो इसको समझने के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन है, इसको समझने के लिए हम लोग ने दो कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग लेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल NaCl ले सकता हूँ मैं, या मैं KCl ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ NaCl लिया, ठीक है, NaCl लिया और NaCl को इसमें डिसोशिएट कर दिया, ठीक है। मान लो वाटर लेवल कितना तक है, मान लो वाटर लेवल इतना तक है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मान लो इतना तक वाटर लेवल है, ठीक है, इतना तक वाटर लेवल है। तो NaCl को जब हम लोग डिसोशिएट करेंगे तो क्या होगा, NaCl विल डिसोशिएट टू फॉर्म Na+ एंड इट विल फॉर्म Cl-। सो इसमें देखो यहाँ जो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी वाटर है, इसमें Na+ और Cl- का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और कंप्लीटली डिसोशिएट होने के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे इसमें। मीन्स आफ्टर डिसोसिएशन सो मेनी आयंस ऑफ सोडियम प्लस एज वेल एज Cl- आयन विल प्रोड्यूस हियर। सो नाउ द पॉइंट इज दैट एक्चुअली मान लो यहाँ जितना भी वाटर है, हम लोग मान लो 1 मोल NaCl डाल दिया है, ठीक है। 1 मोल NaCl डालने के बाद 1 मोल Na+ फॉर्म होगा, 1 मोल Cl- फॉर्म होगा। तो क्या होता है, इसमें जो आयंस रहेगा, इसमें Na+ आयंस रहेगा एज वेल एज Cl- आयंस रहेगा। मतलब बहुत सारा Na+ आयन रहेगा, बहुत सारा Cl- आयन रहेगा, ठीक है। तो
इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे तो देखो दिस इलेक्ट्रोड which is connected to the positive terminal of the battery is known as what, this is anode, this known as anode। तो एनोड क्या करेगा, जितना भी एनायन है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये एनायन यहाँ क्या है, क्लोरीन माइनस है, मीन्स क्लोराइड आयन है। तो जितना भी एनोड या जितना भी क्लोराइड आयन है सबको क्या करेगा, ये एनोड जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो यह देखो यहाँ बहुत सारा क्या है, बहुत सारा Cl माइनस है, बहुत सारा Na प्लस है। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, मीन्स मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। कब मोबिलिटी डिक्रीज होगा, जब नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। तो ये किसके लिए होता है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तब ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ मोबिलिटी क्या होगा, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जब ये जो एनोड है जितना भी एनायन को खींचेगा, तो देखो मान लो एनायन के रास्ते में एक कैटायन आ गया है, तो देखो सारा एनायन इस साइड में मूव करेगा, ठीक है। देखो ये मूव कर रहा है, आ गए कैटायन बीच में, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए मूव करना। ये भी मूव करना चाह रहा है लेकिन Na+ आ गया है मिडिल में, तो ये भी मतलब मूव करेगा लेकिन थोड़ा सा स्लो करेगा, ठीक है। मान लो ये Cl मूव करना चाह रहा है, तो यहाँ देखो रास्ते में बहुत सारा क्लोरीन भी है, सोडियम प्लस भी है। तो इसके लिए क्या होगा, ये मूव करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मीन्स इट विल बी लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर Cl- आयन टू ज्वाइन द एनोड, ओके। और ऑन द अदर हैंड ऑल्सो दिस Na+ विल ऑल्सो फेस सम डिफिकल्टी। Na+ में भी क्या होगा, ये कैथोड के पास जाने में उसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगा। तो इस केस में क्या होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी कम होता है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो हम लोगों ने क्या किया, मान लो हम लोगों ने वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वाटर ऐड किया, मान लो इतना तक वाटर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। मीन्स वी हैव डाइल्यूटेड द सोल्यूशन, डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूट जब मैंने किया तो देखो यहाँ आ गया Na+, ये जो Cl- और Na+ के बीच में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन था, अभी थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि Na+ ऊपर भी आ जाएगा, मीन्स इतना तक पानी है तो Cl- ऊपर आ जाएगा, Na+ ऊपर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ देखो तो ये जो कंजस्टेड जो ये जो आयंस जो है इतना कंजस्टेड था, फिर वो नहीं रहेगा, मीन्स नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। सो नंबर ऑफ आयंस अगर पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी क्या होगा, अल्टीमेटली मोबिलिटी बढ़ जाएगा। Na+, ठीक है, आराम से यह कैथोड के साइड में मूव कर पाएगा और Cl- आराम से एनोड के साइड में मूव कर पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट हाउ with the increase in dilution the molar conductivity increases. So now I'll write the reason here, okay. So what is the reason, I can write with dilution the mobility of ion increases and hence the molar conductivity also increases, okay. So this is the reason for the strong electrolyte, this is the reason for the strong electrolyte, okay. बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, देखो मान लो CH3COOH हम लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है। मान लो CH3COO- फॉर्म किया और +H+ फॉर्म किया। तो नॉर्मली मान लो यह हम लोगों ने 100 मॉलिक्यूल CH3COOH लिया, तो टेक्निकली ये देखा गया है कि मान लो 5 to 6, मान लो मैक्सिमम 10 CH3COO- फॉर्म किया और 10 H+ फॉर्म हुआ, ठीक है। और जो रेस्ट 90 CH3COOH जो है ये दिस आर अनडिसोशिएटेड, ठीक है। ये डिसोशिएट नहीं करेगा, वो अनडिसोशिएटेड रहेगा। देखो ये जो वैल्यूज है मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, दिस आर नॉट द एक्यूरेट वैल्यूज, ओके। सो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, तो ये जो एसिडिक आयन है और हाइड्रोजन आयन है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, नॉर्मली कम होगा, ठीक है। मान लो देखो एसिडिक आयन है CH3COO- है, ठीक है, और H+ भी है। तो सिंस दीज आर लेस डिसोशिएटेड सो द नंबर ऑफ एसिडिक आयन एंड द हाइड्रोजन आयन विल बी लेस इन द सोल्यूशन, ठीक है।
फर्स्ट केस में सेम टू सेम पहले जैसे इतना तक मान लो मैंने लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोगों ने और भी वाटर ऐड कर दिया, मान लो इतना तक, ठीक है, इतना तक हम लोगों ने वाटर ऐड कर दिया, मीन्स वी हैव डाइल्यूटेड द सोल्यूशन। तो डाइल्यूट करने पे क्या हो रहा है, देखो डाइल्यूट करने पे यहाँ क्या होगा, देखो ये जो CH3COOH है इसका डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल मान लो यह कितना मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुआ था, यहाँ 10 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुआ था, लेकिन आफ्टर डाइल्यूशन यह मान लो 15 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया, ठीक है, 15 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए। सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ मान लो CH3COOH फॉर्म हो गया 15 और यहाँ H प्लस भी 15 फॉर्म हो गया, ठीक है। और बाकी जो 85 CH3COOH है दिस आर अनडिसोशिएटेड, ठीक है। तो यहाँ देखो डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीजिंग। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ था, ये पहले से ही 100% डिसोशिएटेड कंडीशन पे थे, और लेकिन बाद में ये जस्ट क्या हुआ, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो इंक्रीज हुआ है, इसके अलावा भी क्या हुआ है, द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुआ है इनके बीच में। सो देखो अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुआ है तो यहाँ जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम, ओके, वर्सेस रूट ओवर ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये देखो ये जो KCl है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके, एंड CH3COOH इज व्हाट, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो ये आप देख सकते हो, मतलब हम लोग यहाँ से 0 से लेके राइट में जाएंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और लेफ्ट में जाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और डाइल्यूशन क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ओके। लेफ्ट में आने पर डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखो ये जो KCl का ग्राफ आप ठीक से देखो, आप जितना भी लेफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, ये जो लैम्डा एम का वैल्यू है, लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है विद डाइल्यूशन वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो यहाँ आके शार्प इंक्रीज हो गया। ये जो एसिटिक एसिड है इसका जो ग्राफ है ये इस पोजीशन पे आके शार्प इंक्रीज हो गया, ठीक है, शार्प इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब हम लोग एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करेंगे सो द नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होगा सो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू भी शार्पली बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस में जिस पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी को इंटरसेक्ट किया है इसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा एम नॉट, ठीक है। लैम्डा एम नॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो कंसंट्रेशन 0 है, यह कंसंट्रेशन 0 है, सो कंसंट्रेशन अगर 0 होगा डाइल्यूशन कितना होगा, डाइल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इन्फाइनिटी, ठीक है। इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो ये जो KCl का 0 कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है दिस इज द मैक्सिमम, ओके। दैट मीन्स व्हाट, at 0 concentration, that means at infinite dilution, the molar conductivity value for KCl is the highest, okay, and this is denoted by lambda m naught. Now what is lambda m naught? Lambda m naught is nothing but this is the limiting molar conductivity, this is the limiting molar conductivity, or I can say molar conductivity at infinite dilution, ओके। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम नॉट, ओके। तो ये हम लोग देख, ये जो KCl है, KCl क्या, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, यूजिंग द ग्राफ, ओके। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, देखो ये जो ग्राफ है ये यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लैम्डा एम का जो एक्सिस है इसमें CH3COOH का जो ग्राफ है दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग, तो अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है तो हमें लैम्डा एम नॉट का वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं मिल रहा है। सो
ये जो लैम्डा एम नॉट का वैल्यू है, लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो वैल्यू है, ये हम लोग इस ग्राफ से नहीं निकाल सकते, इज नॉट इट। तो यहाँ इस पॉइंट से हमें कोलरस लॉ का काम आएगा। जो कोलरस लॉ क्या बता रहा है, दैट मीन्स स्मॉलर कंडक्टिविटी, ओके, लैम्डा एम नॉट फॉर weak electrolyte. Lambda m naught means what? Molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte can be determined using Colruy's law. So इसका statement देखो. So it states that the molar conductivity at infinite dilution, ठीक है, molar conductivity at infinite dilution for a given salt can be expressed as the sum of individual contribution of cation and anion. ठीक है, mathematically कैसे लिखेंगे इसको? Lambda m naught, okay, lambda m naught can be calculated as lambda m naught of cation plus lambda m naught of anion, okay, and in front of that we will just put the number of cation and the number of anion, okay. So V plus is what? This is what? This is the number of cation. This is the number of cation. And V minus is what? This is the number of anion. Okay. So यहाँ क्या हो रहा है देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है, उसको हम लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन से हम लोग निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आ जाएगा, एकदम इजी फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग देखो, हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द कोलरस लॉ। ये जो कोलरस लॉ है, ये तो आपको पता चल गया क्या है, ये हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। देखो एकदम इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। मान लो लैम्डा एम नॉट व्हाट? दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH could not be determined using normal procedure or using the graph, okay. So Kohlrausch law told that the molar conductivity at infinite dilution for any weak electrolyte can be determined using Kohlrausch law. Kohlrausch law का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इसमें क्या किया था, ये मान लो एक सॉल्ट है, CH3COOH है, तो इसका क्या निकालना है, लैम्डा एम नॉट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इसका जो कैटायन है और इसका जो एनायन है, ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का जो कैटायन और एनायन है, दोनों का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है उसको ऐड कर दिया है। तो देखो लैम्डा एम नॉट, ठीक है, लैम्डा एम नॉट ब्रैकेट में लिख लो CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं। सो नाउ व्हाट कैन आई राइट, देखो लैम्डा एम, ओके, लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट Na प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस ब्रैकेट में लैम्डा एम नॉट Na प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। क्या किया देखो, हमारे पास सिर्फ दो चीज था, एक था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक आयन CH3COO माइनस और एक था H प्लस आयन, ठीक है। देखो एसिडिक आयन मैंने यहाँ लिखा लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COO माइनस, और H प्लस आयन कहाँ लिखा, इस पोजीशन मैंने लिखा, ठीक है। और मैंने क्या किया, इंटेंशनली मैंने यहाँ Na प्लस ऐड किया है और यहाँ Cl माइनस ऐड किया है, ठीक है, इंटेंशनली, ठीक है। और यहाँ देखो इस इक्वेशन से हमने लैम्डा एम नॉट फॉर Na प्लस एंड लैम्डा एम नॉट फॉर Cl माइनस इसको हटा भी दिया है। मीन्स जो चीज़ हम लोगों ने ऐड किया था वो यहाँ रिमूव भी कर दिया, कैसे, सामने माइनस लगा के। तो देखो जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH से हम लोग ये दो लिख सकते हैं, तो सिमिलरली इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। तो सिमिलरली देखो इन दोनों को प्लस करो, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों को प्लस करो, क्या आ रहा है, लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस और Na प्लस, तो क्या आ रहा है, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO Na, ठीक है, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl माइनस
lambda m naught of NaCl. ओके, सो देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो CH3COOH है, दिस वाज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। तो इसका हम लोगों ने इसका जो लैम्डा एम का वैल्यू है, लैम्डा एम नॉट का जो वैल्यू है, ये नॉर्मली ग्राफ से हम लोग नॉर्मली पता नहीं कर सकते। तो इसको पता करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हेल्प लिया है, ठीक है। तो ये जो CH3COONA है, HCl है और NaCl है, these are all strong electrolytes, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वैल्यू हम लोग इजीली ग्राफ से निकाल सकते हैं। और दैट मीन्स व्हाट, इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द कोलरास लॉ। ओके, न्यूमेरिकल देखो, lambda m naught for NaCl, HCl and NaSc, okay, are these respectively. So NaCl का कितना है, NaCl का वैल्यू कितना है, okay, lambda m naught for NaCl is what, 126.4, and next is lambda m naught for HCl is what, this is 425.9, and lambda m naught for HAC means what, CH3COOH, AC means what, acetyl. Okay, so it will be 91.0, all are Siemens centimeter square mole inverse. These are the unit of molar conductivity. Okay, so now they have told to calculate lambda m naught for HAC. Okay, so lambda m naught for HAC means what, acetyl, that means I can write CH3COOH. So from the application of Kohlrausch law, from what can I write, this lambda m naught for CH3COOH is equal to lambda m naught CH3COONA plus lambda m naught HCl minus lambda m naught NaCl. Okay, so what is the value of CH3COONA? This is what, this is the 91.0. Okay, sorry, it is not H, it is actually Na, CH3COONA. Okay, next lambda m for HCl is what, 425.9. okay, minus what is the lambda m naught value for NaCl, this is 126.4. so what is answer? So answer is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. Okay, so this is how we can calculate the molar conductivity at infinite dilution. Okay, molar conductivity at infinite dilution for a weak electrolyte. Okay, so this is, so next is application number 2. So this is application number 2. So here I can calculate the degree of dissociation. Okay, so here I can calculate the degree of dissociation. Okay, dissociation and okay, and dissociation constant for weak electrolyte. Okay, for an electrolyte. So degree of dissociation alpha is equal to, okay, lambda m c by lambda m naught. Okay, so lambda m c is what, this is nothing but molar conductivity, at any concentration, okay. And next is, what is lambda m naught, this is molar conductivity at infinite dilution. Okay, is not it, molar conductivity at infinite dilution. So this is what, this is the alpha, that means degree of dissociation. Next I can also calculate dissociation constant, that is denoted by Ka. Okay, so Ka is equal to C alpha square by 1 minus alpha. Okay, so this is the value of Ka, so this is the expression for Ka. So
What is C? C is concentration. Okay, and alpha is what? Alpha is degree of dissociation. Okay, so using the same concept, we will try to solve one numerical. The conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid is this. So what is conductivity? This is nothing but kappa. Kappa is what? 4.95 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Next is calculate its dissociation constant. If lambda m naught for acetic acid is this, so dissociation constant means what? Ka. We need to find Ka. And next, what else is given? It is given the lambda m naught means molar conductivity at infinite dilution for acetic acid. For acetic acid, CH3COOH is how much? 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. To find K, okay, we need to find what? We need to find K. So what is the formula of K? This is C alpha square by 1 minus alpha. Okay, so we need to find alpha first. Okay, alpha is what? Alpha is lambda m C by lambda m naught. This is alpha. So lambda m naught value is already given here. Okay, lambda m naught for acetic acid is already given here. So first we need to find lambda m. 1000, this is 1000 kappa by C. C is what? Concentration in molarity. Okay, so you just put the value of all the kappa and C, so you will get the answer. Okay, so now you just put the value of lambda mc in the to find the alpha. Okay, lambda mc what? For example, you got this. Okay, you got this, you just put the value of this in this position. So what is the value of lambda m naught? So lambda m naught value is 390.5. okay, the value is this, so just you put the value to find the K. What is the value of K? K is what? C. So what is the formula of K? K is C alpha square by 1 minus alpha. So C means what? C means concentration. Okay, so what is the value of concentration? 0.001028. okay, alpha square means what? What is the value of alpha? Alpha is this, alpha square by 1 minus alpha. 1 minus alpha. Okay, so you just put the value of this star and this plus. Okay, so now you will get the final value. Okay, so this is what? This is the dissociation constant. So this is how we calculate the degree of dissociation and the dissociation constant of an weak electrolyte. Okay, so that's all about the topic. Thank you so much for watching.